প্রকাশ্যে ছাপ্পা দিচ্ছেন প্রিসাইডিং অফিসার আর একাধিক রাজনৈতিক দলের নেতারা তার ভিডিও করলেন। তবে তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি নিজের কাজ একেবারে গুছিয়েই করছেন। ভোটের ডিউটিতে বসে নিজের ছাপ্পা ভোট দিয়ে চলেছেন। আর এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই একেবারে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। দেখুন ভিডিওটা। আর এই ছবিটাই বর্তমানে ঘোরাফেরা করছে। ভোটের ডিউটিতে বসে নিজের ছাপ্পা দিচ্ছেন আর এই ছবিটা একেবারে প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস নেতারা এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যেই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এবার নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এই ঘটনা কোথায় ঘটেছে। না, এটা বঙ্গের কোনো ঘটনা নয়, ঘটনাটি চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনে হয়েছে। আপ এবং কংগ্রেসের তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়। অভিযোগ, সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত মেয়র নির্বাচনের ভোটে প্রিসাইডিং অফিসার ব্যালট পেপারের হেরফের করছেন। ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদের 8টি ভোট অবৈধ বলে গণ্য করার পরই বিজেপি প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। আর এদিকে তারপরে আপের তরফে কারচুপির অভিযোগও তোলা হয়। এই মেয়র নির্বাচন 18 জানুয়ারি হওয়ার কথা ছিল, তবে প্রিসাইডিং অফিসারের অসুস্থতার কারণে সেই নির্বাচন 6 ফেব্রুয়ারিতে করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় চণ্ডীগড় প্রশাসন। তবে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে নির্বাচনটি মঙ্গলবার হয়। আর সেখানেই প্রিসাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। ভিডিওটি শেয়ার করে পাঞ্জাবের কংগ্রেসের প্রধান অমরিন্দর সিং রাজা ওয়ারিংয়ের অভিযোগ যে বিজেপি গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে। ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার ভোটে কারচুপি করছেন। এছাড়াও যেটা দেখা যাচ্ছে যে ওয়ারিংয়ের আরও অভিযোগ যে বিজেপি শুধু দুর্নীতিপরায়ণ নয়, তারা নাটকীয়। আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করেছেন যে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী কুলদীপ সিং এর 8টি ভোট বাতিল করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত উদ্বেগজনক। একজন মেয়র নির্বাচনে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে, তাহলে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি যে কোনো মাত্রায় যেতে পারে। সংবাদ মাধ্যমে নিজের প্রতিক্রিয়া দেওয়ার পাশাপাশি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই অভিযোগ করেছেন। नहीं पहले काउंटिंग करो, पहले काउंटिंग का करवाओ। नहीं पहले काउंटिंग कराओ। मिस्टर कुलदीप कुमार, यू कैन चेक द वोट। मिस्टर कुलदीप कुमार वोटेड एक वोटेड फॉर इंडिपेंडेंट। आप प्रधान अरविंद केजरीवाल की बोलছেন শুনবো। इतने बड़े स्तर के ऊपर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के लिए आज तक कभी भी इतनी वोट इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की गई। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे,
ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। মঙ্গলবার চণ্ডীগড় মেয়র নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী মনোজ কুমার সোনকারকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। সোনকার মোট 36টি ভোটের মধ্যে 16টি ভোট পান, যার মধ্যে প্রাক্তন সদস্য কিরণ খের এমপির ভোটও রয়েছে। ইন্ডিয়া ভোটের প্রার্থী কুলদীপ সিং 20টি ভোট পান, তবে তার 8টি ভোট অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। তারপরে আপ কংগ্রেস প্রতিবাদ করা শুরু করে, তাতে রীতিমতো বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। এই নিয়ে তারা পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টে যাবে বলে জানিয়েছে আপ সাংসদ রাঘব চাড্ডা প্রিসাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রিসাইডিং অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহিতা করেছেন। আমরা অভিযোগ দায়ের করব এবং শুধু তদন্ত নয়, তাকে গ্রেপ্তারির দাবি জানাবো। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রিসাইডিং অফিসার অনিল মাসে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং উল্টে আপ এবং কংগ্রেসের কাউন্সিলরদের দিকেই আঙুল তুলেছেন। তার অভিযোগ, আপ এবং কংগ্রেস মিলে নির্বাচন ব্যাহত করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিলেন। প্রিসাইডিং অফিসার অনিল মসি কি বলছেন শুনব। जो आज मेयर का चुनाव हुआ है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ में, उस चुनाव के लिए आई वाज अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और इस चुनाव को करवाने के लिए मेरी एक जिम्मेवारी थी। और ये चुनाव सुबह शुरू हुआ, पूरा इलेक्शन प्रोसेस हमारा जो कॉर्पोरेशन का जो हमारा असेंबली हॉल है वहां शुरू हुआ। और मैंने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में जितने भी पार्षद थे, हमारे मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर थे, सबको मैंने एड्रेस किया इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले कि हम ये इस चुनाव को मिलजुल के अच्छे से फ्री एंड फेयर और बिना किसी लड़ाई झगड़े के करवाना चाहते हैं। और इलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा पीसफुल चल रहा था। सबने अपने वोट अधिकार के हिसाब से हमारे 36 वोट कास्ट हुए, इंक्लूडिंग एमपी का वोट। और उसमें तकरीबन कोई जब कुछ आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको जब हम अपने बैलेट पेपर इश्यू कर रहे थे, तो वो बड़े उसमें सीरियसली उसको कंसर्न थे कि कहीं स्पॉट है, कुछ है। तो अराउंड 11 बैलेट पेपर्स थे जिन पे उन्होंने कहा कि जी ये चेंज कर दीजिए। और आई ऑनर देयर रिक्वेस्ट एंड बड़ा अच्छे ढंग से मैंने उनकी बात को सुना। और 11 के 11 मेरे ख्याल से बैलेट पेपर्स पे जिनको उनको कुछ थोड़ी आपत्ति थी, वो मैंने बैलेट पेपर्स उनको रख दिए साइड पर और न्यू बैलेट पेपर इशू करे, और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इलेक्शन प्रोसेस जब वोटिंग कास्ट हो गया, उसके बाद वोट ऑफ काउंटिंग शुरू हुआ। काउंटिंग ऑफ वोट्स के प्रक्रिया में मैंने जब सारा वो वोटिंग काउंट कर लिया, तो उसमें आई वाज about to declare the result as per the process, as per the bylaws and act। तो उसमें जब मैं अनाउंस करने लगा, तो मेरे अनाउंस करते ही जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उनको 16 वोट पड़े थे, और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप, उनको 12 वोट पड़े थे, और 8 वोट जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो उस दौरान उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे, अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी, और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे, उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट्स पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट्स पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। और कहीं भी आप डेमोक्रेसी में देखिए कि बैलेट्स पेपर पे अगर आप कब्जा करें, तो ये तो हम सुना करते थे, कभी वो जो बिहार में कभी गुंडा राज होता था कि वो पूरे बूथ कैप्चर कर लिए, तो ये तो आज पूरा बैलेट पेपर को कैप्चर करने आ गए थे आप और कांग्रेस के सभी पार्षद मिलकर। अगर वहां चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल नियुक्त न होते, तो आज ये तो बैलेट पेपर फाड़ देते और लेके भाग जाते, इनको कौन पकड़ पाता। और ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को इन्होंने डिरेल करने के लिए, हाईजैक करने के लिए ये एक आज षड्यंत्र रचा। और
पूरा का पूरा जो मैं सुन रहा हूं मीडिया से कि मुझे ब्लेम कर रहे हैं, तो पूरी वीडियोग्राफी में यू कैन चेक कि हु वाज डिस्टर्बिंग द ऑल इलेक्शन प्रोसेस एंड काउंटिंग प्रोसेस। सर क्या रीजन था कि 8 इनवैलिड निकाले गए? वो जो देखिए, वो जो वहां पर जो इनवैलिड जो वोट्स है, उनपे जो उनके मार्क्स होते हैं, कुछ टिक मार्क्स होते हैं, वो होने नहीं चाहिए, तो वो आफ्टर वोटिंग वो पाए गए हैं एंड वो 8 जो उनको हमने जो इनवैलिड उनको डिक्लेयर किया था। आप बता रहे थे थ्रेट को लेके कुछ कह रहे थे। जी, वो मेरे बेटे का फोन आया था कि पापा वो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि उनको फ्रेंड्स ने फोन किया कि मीडिया पे बात हो रही है, इधर उधर बातें हो रही है, और मीडिया पर कुछ जो ऑपोजिशन लोगों के जो कार्यकर्ता हैं वो थ्रेट कर रहे हैं कि हम देख लेंगे, अनिल मसीह को जेल पहुंचवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो एनीवे, लोकतंत्र में सबको अपनी बात और कहने का रखने का हक है। वो आप जाएं, डेमोक्रेसी में कोर्ट्स आर अवेलेबल ऑलरेडी। ये इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेके कई बार हाई कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया है। दे आर ओपन टू गो एनीवेयर टू अपील एनी देयर इशू। बट जो उन्होंने आज किया है, जो इट वाज मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी, दे ट्राई टू कैप्चर द एंटायर पोलिंग सिस्टम। थैंक आज यू। का जो चुनाव हुआ पूरा, हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी थी इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो वो देखिए, आप सहमत हैं कि देखिए जो चुनाव हुआ वीडियोग्राफी में आप देख रहे हैं, वो तो आप खुद एविडेंस आपके पास है कि कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है। अब इस पे जो अगर वो ब्लेम कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए ना कि आपको किसने हक दिया था वहां जाके बैलेट पेपर को कैप्चर करने का और पूरे प्रोसेस को हाईजैक करने का। वो तो चंडीगढ़ पुलिस ने उनसे सारे पेपर छुटवाए। अगर वो चंडीगढ़ पुलिस उनको बैलेट पेपर्स ना छुटवाती तो वो तो लेकर भाग गए थे और फाड़ देते। तो गलत काम तो उन्होंने किया। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो वो आगे आते और बैलेट पेपर को चेक करते, और मैंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए, बैलेट पेपर को आकर चेक कर सकते हैं। बैलेट पेपर को चेक करने के बजाय वो तो फाड़ने आ गए। उनका मनोहर और प्रेमलता ने पूरे कब्जे में ले लिए थे बैलेट पेपर। इट्स ऑल ऑन द रिकॉर्डिंग, कि रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको छुटवाया वहां से बैलेट पेपर को। फिर मैंने उनको अपने कब्जे में लेकर साइन करके सीलिंग अथॉरिटी को जो भी देना था हमने आगे फॉरवर्ड कर जब दिया। मेयर चुनाव खत्म हुए ना, उसके बाद पंजाब के सीएम ने कॉन्फ्रेंस करा और बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए। सीएम ने कहा आपको ही इनवैलिड वोट निकालने पे काफी चीजें बोली। देखिए, मैं इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। देखिए, ये तो लोकतंत्र है। कोई भी पार्टी, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, कोई भी पार्टी अपनी प्रतिक्रिया देती है तो उन्हें देने दो। हमें उसमें क्या लेना देना, वो उनका हक है बात करना। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। আর অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। এখন আমরা রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপেও, তাই ফলো করে নিতে ভুলবেন না।